Hello friends, welcome back to YouTube channel. Those who are watching for the first time, let me introduce myself. My name is Chandar Ramchandani. I've been content strategist for about 15 years. I've worked with publishers, education publishers, academic publishers. I've worked with edtech companies. I've worked with vendors around the world and in India. Working with freelancers, I see there are a lot of gaps between clients and the freelancers, and then there are a lot of basics that a lot of freelancers miss at one place. So I'm trying to put together all the information in form of the videos for you to help, especially if you are a beginner or if you are a person as a freelancer but you are struggling to find regular work, you are struggling to build yourself as a brand in your domain. So before you start freelancing, it is very important that you understand the foundation. क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए as a freelancer, especially if you are a beginner. If you are a beginner, probably you would want to offer 1 or 2 projects for free, or if you are a student, I suggest you probably look for internship for a couple of months, you gain that experience, and accordingly you have that exposure and you can take a freelancing project. So decide your strategy, how do you want to go about it, whether you want to do 1 or 2 projects for free so that clients get the confidence in you and then you can start getting more projects. सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल बायर। आपको ये देखना है कि आपको किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं तो आप शायद एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। विद इन एजुकेशन इंडस्ट्री क्या आप पब्लिशर्स को रीच आउट करना चाहते हैं, एडटेक कंपनीज को रीच आउट करना चाहते हैं, या आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, आपको किस टाइप की वेबसाइट बनाना पसंद है, या आप में किसका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सो यू अकॉर्डिंगली डिसाइड द इंडस्ट्री. वंस यू नो योर इंडस्ट्री, be specific that what type companies you want to target. Once you know the target, I believe वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टारगेट जो क्लाइंट है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर रिसर्च करें और देखें कि उस इंडस्ट्री या उस स्पेसिफिक सेक्टर में किस टाइप के फ्रीलांसर्स हैं, किस टाइप का काम आउटसोर्स होता है और लगभग किस टाइप का रेट वहाँ पे मिलता है. इसलिए आपने अगर सोचा कि आप 1 या 2 प्रोजेक्ट फ्री में करते हैं या आप एक सैंपल उनके लिए फ्री में डेवलप करते हैं, सो व्हाट माय रिकमेंडेशन इज, लेट्स से इफ द क्लाइंट इज हैप्पी विद योर सैंपल वर्क और अ फर्स्ट स्मॉल प्रोजेक्ट, माइक्रो प्रोजेक्ट, ही इज हैप्पी विद इट, आफ्टर दैट प्लीज डोंट डू अ मिस्टेक ऑफ डूइंग इट फॉर फ्री. यू शुड देन कम्युनिकेट क्लियरली द रेट दैट यू वांट टू offer for your skills and then also share terms and condition with him. The term and condition should have the timeline, it should also have the scope of the project, it should have the rate that you offer, and then make sure you get the email confirmation from the client. This is very important guys. सबसे पहले आपको ज़रूरी है अपने स्किल को असेस करना. आपको पता होना चाहिए आपका जो स्किल लेवल है उसका जो कंपटीशन के साथ क्या कंपैरिजन है. I don't want that you are overcharging a client or you are undervaluing your own skill. So this is very important. You should know कि आपका जो स्किल एंड एजुकेशन लेवल है उस प्रोजेक्ट के लिए जो एक्सपीरियंस लेवल है वो कंपैरेटिव कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या कंपेयर करता है. फॉर एग्जांपल, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फ्रीलांसर जो कि 500 रुपीज़ पर आवर चार्ज कर रहा है किसी एक काम के लिए, और आप फ्रेशर हैं या आपके पास 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, या जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज है फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल इज़ नॉट कंपैरेटिव टू वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसर्स, देन यू शुड नॉट कोट 500 पर आवर. यू शुड एक्चुअली डू मे बी 200 या 300. नहीं तो क्लाइंट आपके पास आएगा क्यों? और अगर वो आ भी जाता है एंड ही मे नॉट गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट, आई मे बी रॉन्ग, इट कुड बी that they may get same output from you, but then as experience says, experience and knowledge talks in your project. So I suggest value and rate your service accordingly. The next one is keep upgrading guys. You have to upgrade all the time. If you are in a service industry, skill-based service industry, you have to be upgraded with all the latest technologies. The more you know, the better you become and more clients you get, and you'll be able to get more projects accordingly. So guys, सीखते रहिए please. At whatever age you are, it's important for us to learn every day. Even I still
learn new courses. I still try to learn new skills, new knowledge, gain new knowledge through books और online courses. और आज की डेट में तो वैसे ही इतनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप बहुत ही चीप में नए कोर्स बाय कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं। वो सर्टिफिकेशन आप अपने लिंक्डइन पे लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी एज अ फ्रीलांसर टू ग्रो। फ्यू एग्जांपल्स आर Coursera, Udemy, and there are hundreds of them that you can learn from. So keep upgrading. If you are a beginner, अभी आपने freelancing start किया है, so I suggest you keep this checklist with you. Number 1, strong profile. प्रोफाइल में सब कुछ मेंशन करिए, मेक इट मोर प्रोफेशनल। आपके एजुकेशन, स्किल, पास्ट प्रोजेक्ट अचीवमेंट सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज बेसिक चेकलिस्ट। वंस यू क्रिएट योर प्रोफाइल, please look at all the links that you are sharing. The links should be open accessible to anyone, not that those links are not working or it needs access from you. This may not work. So please, basic checklist, keep your contact numbers accurate, email IDs, keep checking your email IDs. You probably may have received email ID, but आपको शायद email check करने की आदत नहीं है, तो आपकी email miss हो जाएगी. Don't miss your phone calls, and these are some of the very basic checklists that you should always have. सिमिलरली कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो लिंक बना सकते हैं, अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं। वो छोटी सी वेबसाइट आपको बहुत हेल्प कर सकती है, तो दैट विल हेल्प यू गेट मोर प्रोजेक्ट्स, मोर विजिबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है अपने प्रोफाइल में। जब आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स, अपने स्किल्स को हाईलाइट करते हैं प्रॉपरली, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी जो होती है वो क्लाइंट को दिखती है और उससे उसे कॉन्फिडेंस आता है आपको पहली बार काम देने के लिए। द नेक्स्ट वन इज लुक फॉर लो कॉस्ट प्रोजेक्ट। इफ़ यू आर न्यू, डोंट गो फॉर वेरी हैवी प्रोजेक्ट, डोंट गो फॉर लार्ज प्रोजेक्ट और द प्रोजेक्ट दैट नीड्स एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज। आप थोड़े बेसिक प्रोजेक्ट्स की तरफ देखिए, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके एक तो आप क्लाइंट का कॉन्फिडेंस ले लेंगे, ऊपर से आपका भी कॉन्फिडेंस गेन होगा और आपको और प्रोजेक्ट मिलने में हेल्प मिलेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक ऑफ गेटिंग मोर रिव्यूज। शुरू में पैसा बनाने की जगह आप रिव्यूज़ को कलेक्ट करें। रिव्यूज़ कैसे आएंगे? आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने में बिलीव करिए, ना कि ओवर चार्ज करने में या ज़्यादा पैसा बनाने में। शुरू में आपको अपना क्लाइंट का डेटाबेस बनाना है, आपको क्लाइंटेल बनाना है, तो शुरू में आप प्लीज़ रिव्यूज़ पे फोकस करिए। प्रोजेक्ट फिनिश होते ही यू कैन आस्क फॉर रिव्यूज़ फॉर देम। एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, हमें लगता है चलो अब काम चल रहा है, नहीं। आपको एक प्रोजेक्ट मिल गए, दो प्रोजेक्ट मिल गए, यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। योर पाइपलाइन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि एक प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है तो आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट भी है, या आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक ख़त्म हो रहा है तो तीसरा भी रेडी हो रहा है आपके लिए। तो आपको हमेशा नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। दैट शुड बी योर ऑन गोइंग एक्टिविटी। आप अपना दिन ऐसे प्लान करिए कि एटलीस्ट 1 घंटा आप क्लाइंट को रीच आउट करने में लगाएंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, टॉपटेल है, स्किलमॉन्ड है, इन सब प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करिए और कीप अप्रोचिंग देम, कीप बिडिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ लीड्स। जब भी आप प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं, अप्लाई करते हैं, ईमेल करते हैं, आप कोशिश करिए कि आप प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि जब आप अपनी बिड कोटेशन बनाएंगे, इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यू मेंशन सर्टेन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट अलाइन विद हिज रिक्वायरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है गाइस। पर्सनलाइज करो कोटेशन को। एक कॉमन कोटेशन सबको नहीं भेजनी, दैट हाई, आई हैव लुक्ड एट योर प्रोजेक्ट एंड आई थिंक आई कैन डू इट, आई कैन बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर योर प्रोजेक्ट। ये सारे जनरल स्टेटमेंट्स मे नॉट वर्क लॉट ऑफ टाइम। तो आप थोड़ा कस्टमाइज करिए, पर्सनलाइज करिए, आई एम श्योर यू गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आप जब कोटेशन बनाते हैं, सिर्फ स्किल बनाने के लिए, दिखाने के लिए इज़ नॉट इनफ। यू शुड portray it that you are solving the client problem. He should feel that with your proposal that you're going to solve his problem and you're thinking that way, you're taking ownership of that project और आप उसको इतना deeply समझ रहे हो, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। एंड दैट कैन बी easily visible from your quotation that you submit or the proposal that you email to them. So these are some of the basic tricks. Please follow it and I'm sure that you get a lot of projects.
कुछ ऐसे रीज़न जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वाई फ्रीलांसर्स फेल लॉट ऑफ टाइम, व्हाट आर सम ऑफ दोज बेसिक रीजन दैट वी सी फ्रीलांसर्स आर नॉट मेकिंग मनी और दे नॉट गेटिंग मोर प्रोजेक्ट्स। तो चलो जानते हैं इन सब चीज़ों को, जो आप प्लीज़ अपने ध्यान में रखिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी मैंने पॉइंट आउट करी हैं जो हमारे हाथ में हैं एंड कुछ मार्केट के फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में है। लेट्स गाइस फोकस ऑन दैट। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। पहले भी मैंने आपको बताया, अपना प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रोफेशनल बनाइए। सेकंड वन इज़ पोर्टफोलियो। आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो बताता है कि आप क्या काम कर सकते हो, क्या क्या काम आपने किया है। तो पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें सब कुछ कवर होना चाहिए, जितने भी टाइप के आपने काम किए हैं। अगर आपने शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पास में नहीं करे हैं, यू आर अ बिगनर, आई वुड सजेस्ट आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेट्स से अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रीलांसर है, आप एक छोटी सी वेबसाइट अपने लिए बना दीजिए एंड शोकेस दैट एज योर वर्क, दैट कैन ऑब्वियसली हेल्प यू। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज ऑनलाइन प्रेजेंस। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है, क्या आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर क्या आप सारी फील्ड्स कवर कर रहे हैं। हम एक वीडियो फिर बनाएंगे, उसके ऊपर हम लिंक्डइन प्रोफाइल की भी बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, दूसरे जो अडोबी गिटहब के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो है कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग, कितने अच्छे से आप अपने आप को मार्केट करते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर यू टू ग्रो एज अ फ्रीलांसर। आपको अपनी मार्केट करनी है, यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ एज इफ यू आर अ ब्रांड। सो थिंक दैट वे, कीप नेटवर्किंग, योर नेटवर्किंग हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप हमेशा नेटवर्क करिए नए क्लाइंट से, गो टू द इवेंट्स वेयर यू कैन कनेक्ट and join some groups, make some friends and within that community, and I'm sure you will get lot of new clients as well. एक और रीज़न होता है फ्रीलांसर्स हम लोग फेल हो जाते हैं कई बार बिकॉज ऑफ नेसेसरी स्किल्स दैट वी नीड टू हैव टू परफॉर्म सम प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली हम सबको सारे नॉलेज तो है नहीं, सारे स्किल्स हमारे पास नहीं होते हैं, या विद इन वेबसाइट डेवलपमेंट there are a lot of skills that you need, and you pick up a project where you probably are not a good fit. Don't do that mistake, because if you do that mistake, you will not get that client, you will not get that good word of mouth, and you also lose confidence. आप वही प्रोजेक्ट पकड़िए जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज़ है, आपको लगता है कहीं पे आपको अपस्किलिंग करनी है, इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हमने बताए आप कहीं भी जाकर आप उनको कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जो कि हमें लगता है कि फ्रीलांसर्स वो फेल करती है ज़्यादा प्रोजेक्ट आने में। द रीज़न इज़ यू प्रॉब्ली ओवर चार्जिंग और यू आर अंडर वैल्यूइंग। अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएंगे शायद, और आप अगर कम चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम चार्ज कर रहे हैं, तो भी एक रिस्क होता है कि क्लाइंट वुड थिंक दैट ही मे नॉट गेट दैट क्वालिटी ही नीड्स। सो योर प्रोजेक्ट प्राइस हैज़ टू बी at as per the market and as per the skills and experience that you have. This is another point. The next point is, which is probably not in our hand, is the market factor. Let's say you are competing in a skill where there are already a lot of freelancers, the market is saturated, you're finding it very difficult to get projects, and there is nothing much you can do from your side. So in that case, what you should do, probably I would suggest you find your niche and focus only on that niche. Within, let's say, social media marketing, you are a freelancer, don't go for everything. Let's say you just focus on one thing, probably let's say you only focus on LinkedIn marketing. So you work only for that area, you create that niche and you become an expert of that niche, and you actually beat out of competition. So thank you. These are some of the reasons where we fail, and please keep those in mind, and I think there is nothing that can stop you. So you are your own master. There is no dearth of freelancing jobs in the market. All you have to do is focus, be sincere, be consistent, and you will get a lot of projects. So here are some 8 tips for you. Create a strong online presence. You should be there on LinkedIn, you should be there on other platforms. Then strong and build a very strong portfolio, and that should have all your work and achievements. The third one is keep targeting new clients. Your pipeline of leads should be very strong so that you are never out of the project. The next is you target to work for free when you are a beginner. This will give you confidence, this will give you more clients. The next one is be ready for teamwork.
and you should have a team of freelancers if you get bigger project, or if you have a project which needs other skills, you can take their help. Always aim for better networking. As I said, I keep saying, the last and not the least is the communication. Communication is very important. You have to be good communicator, good marketer, and so you can manage your business, because this is your business, and this is also a topic for our next video. So please guys, subscribe our channel so that you know that the next video is up. Please don't forget to hit the bell icon button. Thank you for watching. See you soon.